नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो एक काल्पनिक अवधारणा है उसकी काउंटिंग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और आज समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स चार्ज से कनेक्ट करने वाला गॉस लॉ का बेसिक कथन क्या है और उस स्टेटमेंट की पुष्टि किस तरह से की गई है। ये लर्निंग वीडियो दो भाषाओं में बनाई जा रही है, जिसमें विषय का वर्णन शुरू में अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है और बाद में दोहरान और समझाइश हिंदी भाषा में की जाती है। दिस इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो इज प्रिपेयर्ड इन bilingual script. First, the study material is described in English language and then the same is revised and explained in Hindi. Let's start the concept of electric flux and its connection with source charge using Gauss law. Electric force lines is an imaginary concept given by Michael Faraday for pictorial representation of electric field phenomena. Now, counting of these electric force lines is known as electric flux and total amount of flux passing through per unit of normal cross section area. The ratio of flux and normal area is known as flux density or electric field intensity. Gauss law relate total amount of charge in a volume enclosed by any closed surface by total amount of flux crossing that surface, and when from charge relation we got flux, we can find out flux density or electric field intensity, and we can do calculation of electric potential and other parameter quite conveniently with the application of Gauss law. The basic statement of Gauss law is given as the net total flux across any closed surface is equal to the ratio of total amount of charge enclosed in surface and the permittivity of media. We know positive charge produce outward electric force lines or flux and negative charge produce inward electric force lines. If this charge distribution produce a non-uniform electric field, then from a small elemental area, elemental flux crossing area is given as dot product of electric field intensity and area vector, and if area vector normal outward from surface and electric field vector got an angle theta, then this dot product is E dA cos theta, and the total amount of flux crossing this closed surface can be obtained by closed surface integration of elemental flux contributions, and as per Gauss law, this total amount of flux crossing a closed surface is equal to summation of charge present in volume enclosed by that surface divided by permittivity of that media. If this closed surface enclose positive Q1, positive Q2 and negative Q3, then summation of that charge divided by permittivity of media is equal to total amount of flux crossing this closed surface, which is enclosing a volume having these charges, and it is closed surface integration of electric field intensity. Now in this flux calculation across this closed surface, there is no concern or relation of external charges as Q4 here, and flux contribution is contributed only by those charges which is in the volume which is enclosed by this closed surface. विद्युत बल रेखाएं माइकल फेराडे द्वारा दी गई एक काल्पनिक अवधारणा है जिसकी मदद से हम चित्र बनाकर विद्युत क्षेत्र के घटनाक्रमों को प्रदर्शित और समझने का काम करते हैं। इन विद्युत बल रेखाओं की जो काल्पनिक उपस्थिति है उसे गिना जाता है और उस गिनती को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और एकांक अभिलंब काट क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स को, जो फ्लक्स का घनत्व है, उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहाँ ए काट क्षेत्रफल बल रेखाओं के अभिलंब साई फ्लक्स को पार कर रहा है तो पार होने वाला फ्लक्स और अभिलंब काट क्षेत्रफल का ये अनुपात फ्लक्स घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गॉस के नियम की मदद से हम स्रोत आवेशों से जो विद्युत क्षेत्र और बल रेखाएं बनती हैं उनके फ्लक्स का जो संबंध है वो स्रोत आवेशों से बनाते हैं, और स्रोत आवेशों से फ्लक्स की गणना करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। और गॉस लॉ की इस्तेमाल से अनेक स्थितियों पे हम आसानी से विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं और विभवांतर की गणनाएं करते हैं। जो गॉस लॉ का मूल कथन है वो यूं कहा जा सकता है कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स की जो मात्रा है वो उस अनुपात के बराबर होगा जो इस बंद पृष्ठ के अंदर आए हुए आयतन के आवेशों के कुल मान और माध्यम की विद्युतचलता का बनता है। यदि आवेशों का ये वितरण इस बंद पृष्ठ की सतह पे एक असमरूप विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है तो एक अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल dA पर, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, अल्प मात्रा में
जो फ्लक्स पार होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश के बीच में थीटा कोण है तो ये ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इस तरह के जो अल्प फ्लक्स योगदान अल्प क्षेत्रफल से बनेंगे उन सब के योग से अगर हम पूरे बंद पृष्ठ पर समाकलन करें तो किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात हो सकता है। और हम कह सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन है। और ये गॉस के नियमानुसार पृष्ठ में परिबद्ध आवेश जो बंद पृष्ठ के अंदर आए हुए आयतन के अंदर निहित है और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर है। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश हैं तो उन सभी का योग जब हम बीजगणितीय रूप से करते हैं तो पृष्ठ में निहित कुल बंद आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स हो जाएगा। और यही उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन भी होगा। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स में केवल अंदर आए हुए आवेशों का योगदान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पृष्ठ के बाहर जो आवेश होंगे वो किसी भी बंद पृष्ठ पे फ्लक्स मात्रा के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। लेकिन ऐसे बाह्य आवेश पृष्ठ के किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के निर्धारण में निश्चित रूप से अपना योगदान देते हैं। लेकिन एक बाह्य आवेश किसी भी बंद पृष्ठ पे जितना इनकमिंग फ्लक्स बनाएगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स बनाएगा। तो बाह्य आवेशों के कारण किसी भी बंद पृष्ठ पे नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन शून्य होगा और किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स केवल उस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। A simple proof or derivation of Gauss law is as consider a point charge small q and a concentric spherical surface, we call it Gaussian surface, of radius r such that this source charge is situated at the center of this sphere. Now consider an elemental area ds on this spherical surface as enclosed by this red ellipse. Now elemental flux passing through this small elemental area ds is given by dot product of electric field intensity on the surface and area vector. Now total flux across this closed spherical surface can be obtained by closed surface integration of elemental flux contributions, and total flux coming from a closed surface is closed surface integration of electric field intensity. Now here electric field intensity at a distance r from source charge small q is kq upon r square and it is radial outward. And for spherical surface area vector is also directed radial outward normal to the surface and outward direction as this n cap normal direction. Now angle between r cap and n cap is 0 and dot product of these two unit vector magnitude 1 each and cos 0 is 1 is unity. Now over this entire spherical surface electric field of this point charge situated at the center of the sphere is everywhere radial outward and constant in magnitude equal to kq upon r square, and everywhere E vector and area vector are in the same direction. Area vector radial outward normal is denoted by blue arrow and electric field radial outward is indicated by red arrow, and both are aligned. So dot product of two unit vector r cap and n cap over entire spherical surface is unity. This kq upon r square being constant can be brought out of integration, and integration of spherical surface becomes 4 pi r square. In place of k I can write 1 upon 4 pi epsilon, where epsilon is permittivity of media, and if it is air then we can replace permittivity of air as epsilon naught, and 4 pi r square get cancel out, and simply we got total amount of flux coming out from this closed spherical surface is equal to enclosed charge divided by permittivity of media. Here this relation of total flux from a closed surface or closed surface integration of electric field intensity is equal to summation charge upon epsilon is also true when this charge is not placed at symmetrical center position or this closed surface got any irregular shape. Even in that condition Gauss law remains the same, and we can prove such unsymmetrical conditions using the concept of solid angle as it is illustrated in another video of the same playlist. So using Gauss law we can relate enclosed charge with total amount of flux or closed surface integration of electric field intensity on the surface. In some symmetrical geometric field distributions we can easily calculate amount of electric field intensity in terms of charge enclosed, and by that electric field intensity we can also find out potential and potential difference in electric fields. Now for convenience of calculations we construct a symmetrical Gaussian surface around charge
charge distribution, and over that Gaussian surface, electric force lines are either parallel to some part of that closed Gaussian surface or are normal to that Gaussian surface. And when they are normal to surface, we found that electric field intensity magnitude is also the same everywhere on the surface, and area vector and electric field intensity vector got an alignment. If our charge distribution is produced by point charges or spherical charges, then the Gaussian surface would be a spherical surface of common center. So concentric spherical surfaces become Gaussian surface, and on those spherical surface we can easily calculate electric field intensities. Similarly, for line charge or cylindrical charge, the Gaussian surface become a coaxial cylinder shape where axis of Gaussian surface cylinder and line charge would be the same. And in case of electric field produced by parallel plate, such closed surface which are either parallel to these parallel plates or normal to these plates will form Gaussian surface. And in other videos of this playlist, we have taken all these example of Gauss law applications and you can check those. आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अगर व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है तो उन सभी विद्युत क्षेत्रों में गॉस के नियम को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। हम एक सरल सममित स्थिति यहाँ अध्ययन के लिए चयन करते हैं और मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश स्मॉल q के चारों तरफ जो r त्रिज्या का सकेंद्रीय गोलाकार पृष्ठ बनाया हुआ है, इस पृष्ठ पर हमें गॉस के नियम को सत्यापित करना है। हमने इस गोलाकार पृष्ठ पे एक छोटा क्षेत्रफल अल्पांश लिया और इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल जिसे हमने यहाँ रेड इलिप्स से और पीली हाईलाइट से चिन्हित किया हुआ है, वहां से निकलने वाला जो अल्प मात्रा में फ्लक्स है वो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट होगा। एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की तरफ है और r दूरी पे इसका मान kq/r² होगा और गोलीय पृष्ठ में जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर त्रिज्यीय है और E और क्षेत्रफल सदिश जब एक ही दिशा में अनुदिश होते हैं, दोनों के बीच में कोण θ0 होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक साधारण गुणन के बराबर हो जाएगा क्योंकि cos 0 1 के बराबर है। ऐसे सभी अल्प एरिया पर जो छोटा छोटा फ्लक्स निकल रहा है उसका योग ज्ञात करने के लिए ऐसी असमरूप स्थितियां जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा सभी स्थानों पर बदल रही है, हम समाकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि अल्प फ्लक्स योगदान का जो समाकलन मान है वो किसी भी बंद पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स हो गया है और किसी भी बंद पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन हो गया है। यहाँ पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी स्थानों पर लाल तीर के अनुरूप त्रिज्या बाहर की तरफ और बिंदु आवेश से गोलाकार पृष्ठ की दूरी r होने पर एक जैसा मान kq/r² रखती है और सभी पृष्ठ स्थितियों पे पृष्ठ सदिश की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ त्रिज्यीय दिशा में है, तो पृष्ठ सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच में पूरे गॉसियन सरफेस पर एकरूपता होने के कारण ये डॉट प्रोडक्ट सभी पृष्ठ पर यूनिटी के बराबर होगा। गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान kq/r² भी नियत है, तो नियतांक को समाकलन से जब बाहर ले लेंगे तो कुल फ्लक्स की गणना पूरे गॉसियन पृष्ठ के समाकलन से ज्ञात हो जाएगी और एक गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r है उसका संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 4πr² के बराबर होगा। k की जगह अगर हम 1/4πε लिख दें, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है और अगर माध्यम हवा या निर्वात हो तो निर्वात की विद्युतशीलता ε0 लिखी जा सकती है। यहाँ 4π और r² आपस में अंश और हर में बराबर आने पर निरस्त हो गए हैं और हमने पाया कि गॉस के नियमानुसार किसी भी बंद पृष्ठ से निकला हुआ कुल फ्लक्स पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आ गया है। यहाँ हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है वो एक सममित गोलाकार पृष्ठ ले लिया और स्रोत आवेश को इसके ठीक केंद्र पे ले लिया। अगर ये आवेश असममित स्थितियों में होता, बंद पृष्ठ भी गोलाकार की बजाय कोई भिन्न आकृति या आकार का होता, तब भी इस तथ्य को इसी प्रकार पुष्ट किया जा सकता था। हम असममित स्थितियों पर गॉस के नियम की पुष्टि के लिए ठोस कोण की अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं और हमारी इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी लर्निंग वीडियो में गॉस लॉ को उन विशिष्ट स्थितियों के लिए भी सत्यापित किया हुआ है। और अगर पृष्ठ में एक से अधिक आवेश होते तो कुल फ्लक्स अलग अलग आवेशों के फ्लक्स योगदान से जब कैलकुलेट किया जाता तो यहाँ एक आवेश की बजाय परिबद्ध सभी आवेशों का योग प्राप्त हो जाता और हम कह सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर है और यही पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र की तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन भी है। गॉस के नियम की मदद से ज्यामिति में जो सममित विद्युत क्षेत्र के वितरण होते हैं, उन स्थितियों पे हम बहुत आसानी से पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश के साथ रिलेट कर सकते हैं। और इस तरह से जब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है तो हम विभव और विभवांतर संबंधी दूसरी गणनाएं भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आवेश के वितरण के लिए इस तरह की गणनाओं को सहज रूप से करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की रचना करनी होती है और उस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस इस तरह की एक बंद पृष्ठ आकृति है जिस पर विद्युत बल रेखाएं या तो पृष्ठ के समांतर होती हैं और उन समांतर पृष्ठ भाग पे शुद्ध फ्लक्स का गणना करने पर मान 0 हो जाएगा, अन्यथा ये बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंब होंगी। और जब ऐसी बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंब होती हैं तो वहां पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सभी जगह अपना मान एक समान रखती है और हम ऐसे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणा से फ्लक्स की कुल मात्रा को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरह से जो फ्लक्स की कुल मात्रा है वो परिबद्ध आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। हमें अगर आवेश की मात्रा मालूम है, हमने फ्लक्स की गणना कर ली है, तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल की ज्यामिति से पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात हो जाएंगी और उन विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं की मदद से हम विभवांतर और अन्य गणनाएं भी सहजता से कर सकते हैं। इस तरह के जो गॉसियन पृष्ठ हैं वो किसी बिंदु स्रोत आवेश या गोलाकार चालक आवेशों के लिए समान केंद्र के गोलाकार दूसरे पृष्ठ होते हैं, वहीं एक रेखीय आवेश या बेलनाकार आवेश के लिए समान अक्ष के साथ बनाए गए जो बेलनाकार पृष्ठ होंगे वो गॉसियन पृष्ठ होंगे। और अगर समांतर प्लेटों से कोई विद्युत क्षेत्र की रचना हुई है तो उस विद्युत क्षेत्र में जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा उसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल हैं वो या तो इन आवेशित प्लेटों के समांतर होंगे या फिर इन आवेशित प्लेटों के लंबवत होंगे। और इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र में जिस भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं वहां एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को आसानी से गणना किया जा सकता है। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स परिबद्ध आवेशों के साथ संबंधित है और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ एक सरल क्षेत्रफल की ज्यामिति के अनुसार संबंध है और इस संबंध से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सहजता से ज्ञात हो जाती है। इसी प्लेलिस्ट की कुछ दूसरी वीडियो में हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल से समझा है, जिनकी मदद से आप गोलाकार, बेलनाकार और समांतर प्लेटों से बने हुए विद्युत क्षेत्र की गणनाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से गॉस लॉ और उसका डेरिवेशन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो की मदद से आप गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को समझ पाएंगे और परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का बहुत सहजता से सटीक उत्तर देकर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।